Hi guys, good afternoon. We'll wait for a couple of minutes for everyone to join in. Then I'll unmute myself and then we'll begin the lecture. Okay. All right. So I think everyone is now in the class. So I hope आप लोगों को
वीडियोस आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव अटेम्प्टेड द होमवर्क दैट आई आस्क्ड यू टू डू लाइक लास्ट टाइम. सो विल गो इन द सेम मैनर जैसे हम लोग पहले कर रहे थे. कॉन्सेप्चुअल डाउट्स फर्स्ट एंड देन एफबीओ एंड एफबीएस का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो भी डाउट्स आप लोगों को है विल डिस्कस. सो नाउ लेट मी first take the doubts from the chapter itself, from the concepts, and in order to kickstart that, let me talk about the subtopics that you would have studied in the chapter. So, सबसे पहला was the construction and working of the galvanic cell, right? So, let me quickly first write this down. फिर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आएंगे. देन इसके बाद I had asked you to, or I had explained types of electrodes, types of half cells. Then we had moved on towards understanding representation of cell. Okay. This was something what the first lecture was. Then the fourth lecture, sorry, not the second lecture, is actually जिसमें आप लोगों ने electrode potential का discuss किया था. Electrode potential and cell potential. This is something which got discussed, and post this reference electrode came in, and then you talked about electrochemical series, and then last part of the lecture was thermodynamics of cell. Right, so these were the major subtopics. Now एक एक करके चलते हैं, and let me first kind of go through कि after seeing those two lectures and attempting the booklet मेरा आपसे expectation क्या क्या है. So you'll get a sense check of what you all should be, or what status you should be at. So पहला subtopic देखते हैं, construction and working of galvanic cell. So now this is something which as an expectation from you guys, you should now be able to clearly explain if I ask you the questions like which electrode is positive or negative in galvanic cell, whether it is anode or cathode, where does oxidation takes place, where does reduction take place. Then when the cell starts to work, in which directions do electrons flow, as in from anode to cathode or cathode to anode, which direction does current flow. Then in the internal part of the cell, ions are flowing through salt bridge. So what is the direction of the ions? Positive ions किस तरफ जा रहे हैं, negative ions किस तरफ जा रहे हैं, current अंदर के circuit में कैसे move कर रहा है, anode to cathode या cathode to anode, external part of the cell में कैसे move कर रहा है current. Then what are the key features and functions of salt bridge. Then some of these details are what you should be able to understand and articulate well if you want to answer questions like this. Okay, now what I have seen as a help in this particular subtopic is एक बार के लिए अगर आप lectures देख भी लेते हो और खुद से याद भी रख लेते हो तो समझ में जरूर आता है. आप टेम्परेरीली चीज़ों को समझ के आंसर भी कर देते हो क्वेश्चन, बट प्लीज रिमेंबर जब एग्जाम का टाइम आएगा एंड यू विल हैव टू you don't have the notes to refer and you will have to be एकदम clear without any confusion what is happening in the cell. तो वहाँ पर it is something where this method helps.
You pick one or two of your friends from your batches and explain them this entire cell and its working, and then do cross questioning to each other that ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है. You might get stuck at some point, you might have some questions. So that exercise is something which if you will do with one or two of your friends, you will be able to get a much better grip on the construction and working of galvanic cell, and you will be in fact able to retain this for a longer amount of time. मतलब जब आपको फ्यूचर में आज से कुछ टाइम बाद इस पे क्वेश्चंस याद करने रहेंगे, तो you will be in a much better position. So make it a kind of a discussion based learning, and you will definitely see the improvement. Okay, so this was something which was an expectation from your side. Now from this subtopic we are open to doubts. तो आपको कुछ स्पेसिफिकली पूछना है, बताना है, तो आप बताओ, लेट मी नो. All right, so no conceptual doubts from this. Then can we move to the second subtopic? ठीक है. आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कुछ यस नो करके एक बार रिप्लाई दो चैट पर. आ रही है. आ रही है ना? ठीक 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 ठीक. All right. Then let's move on to the second subtopic, which is about the types of electrodes. Now जब ये galvanic cell का मैंने डिस्कशन करा था, जो फर्स्ट सब टॉपिक है, उसमें तो हमने क्या था, बहुत ही सिंपल टाइप का कंस्ट्रक्शन देखा था, सिंपल टाइप का हाफ सेल देखा था कि मेटल है और मेटल उसके सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड है. So that is one type of electrode, metal and metal rod dipped in its soluble salt. Then इसके अलावा there were three other types which I had asked you, or which were explained, and then इनसे अब आपका expectation क्या रहेगा, ध्यान से observe करना. The expectation would be कि इन सब electrodes का construction कैसा है, ठीक है, एंड देन इन सब इलेक्ट्रोड्स के रिएक्शंस आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है. इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस लिखने आने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि कोई गैस आयन इलेक्ट्रोड है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा. सो गैस आयन इलेक्ट्रोड के केस में व्हाट यू हैव इज द सॉल्यूशन of ions, ठीक है, and then there is a provision to blow in the gas. However, for better reaction purposes, यहाँ पर एक inert metal का rod place कर देते हैं, which serves two purposes. It kind of provides a surface जहाँ पर reaction होगा, and it also helps in movement of the electrons, अंदर आने या बाहर ले जाने, right? Then इसके reactions are something which like it's something you should be able to clearly write. For example, let's say अगर it's a gas ion electrode of hydrogen and its ions, ठीक है, H2 and H plus ions का है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन रहेगा, which is or something that you can write as H2 plus 2 electron giving 2H plus, right? This is something that you can write. And अगर कैथोड पर है, सर आपने उल्टा लिखा है. हाँ, ओ माय बैड, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, वो मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था, तुम सो नहीं गए ना. एंड देन कैथोड पर you have just the opposite of it. 2H plus 2 electron is giving H2 gas.
राइट। अब नोटिस करना यहाँ पर समटाइम्स लेट्स से यू हैव क्लोरीन गैस एंड क्लोरीन आयंस, ठीक है। तो अब इसका आप एनोड और कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखोगे? से एनोड पर तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना है, तो अब इस टाइम 2Cl माइनस आयंस आर गोइंग टू गिव यू Cl2 gas plus 2 electrons, right? ये you have to notice that यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है। अगर कैथोड पर है तो कैसा रहेगा? एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, 2 Cl2 gas plus 2 electrons is going to give you 2Cl minus ions, जैसे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। सो यू शुड बी able to write these reactions very clearly. Then जैसे this was there. This is something where I have seen a lot of students not being able to rewrite the reactions. Metal insoluble salt, ठीक है। In fact, let me kind of differentiate between the two very clearly. So there is metal soluble salt electrode, and then there is metal insoluble salt electrode. So इसमें कैसा रहेगा? For example, you have Ag as the metal electrode and it is dipped in say AgNO3 का solution, ठीक है। This is something on soluble salt of silver, right? So what you have as reactions of anode and cathode are simple, straightforward. Ag gives Ag plus aqueous plus electron, and cathode will be the opposite of it, right? Now this is something different when you have the metal insoluble salt electrode. अब इसके अंदर कैसा रहेगा? You have Ag metal and इस metal के rod के ऊपर you will have a coating of the insoluble salt, say AgCl, and this setup, my bad, this setup is something which will be dipped in a solution of the anion, ठीक है। से KCl का solution होगा, इसमें ये dipped रहेगा, अनायन होना चाहिए, ये अनायन कॉमन होना चाहिए, सॉल्ट का अनायन, ठीक है। एंड इसके रिएक्शंस अलग होंगे, इसके रिएक्शन सेम नहीं होंगे। यहाँ पर अब रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन विल बी Ag solid plus Cl minus aqueous is giving AgCl solid plus electron, and cathode will be exactly opposite of it. See, this is something which I am redoing for you because it is important that you should be able to clearly understand and differentiate between these two types of half cells. आगे बहुत बार ये काम आएगा। इन दोनों का potential difference भी अलग अलग होता है, इनका ये सेम नहीं रहता है potential difference। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखा है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये +1 से 0 जा रहा है, यहाँ पे भी +1 से 0 जा रहा है, बट ये AgCl से Ag जा रहा है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग रहता है, इनके रिएक्शंस ही अलग अलग है। सो काइंड ऑफ क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ठीक है। देन redox electrode is something जिसमें ions in the solution themselves react with each other and there is just an inert metal का electrode to facilitate the flow of electrons, right? So these are the 4 types of electrodes, as I said. The expectation is that you must understand their construction and the reactions that happen in them. इनमें कोई specific doubt है आपको तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर सर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में सर वो एजी कहाँ से आया सर? हमारे पास तो AgCl का सर सॉल्ट Ag कहाँ से आया रिएक्शन में अकेला? मतलब डिजाइन था ये तो, मतलब Ag का सॉल्ट ले रहे हैं हम, आपको Ag नहीं चाहिए तो आप कोई और मेटल ले लो, Pb सर ले आपने KCl लिया था उसमें। सॉरी
सर आपने केसीएल का सॉल्यूशन लिया था तो एनोड पे सर केसीएल का होना चाहिए, मतलब के का रिएक्शन होना चाहिए ना, के प्लस सीएल माइनस एजी प्लस इलेक्ट्रॉन। नहीं 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 नहीं, ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में के प्लस एज अ स्पेक्टेटर आयन रखा रहेगा, ठीक है। के प्लस इस सॉल्यूशन में स्पेक्टेटर आयन की तरह रहेगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। यस सर। वी हैव मेटल एंड मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर मेटल रखा है Ag और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट रखा है AgCl, इसके लिए उनके रिएक्शंस लिख रहा हूँ। अब मैं कुछ और भी चूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर Pb ले सकता हूँ और Pb का इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज कर सकता हूँ, से PbCl2, तो ये एक अलग इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का आप नहीं बना पाओगे ऐसे, पोटेशियम का आप क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि पोटेशियम का मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो द मोमेंट यू टेक यस सर। पोटेशियम इनटू द वाटर का सोल्यूशन, तो पोटेशियम वहीं पे रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। ओके, और कोई डाउट? So what is a reference electrode? आ रहे हैं अभी, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू कम टू इन अ व्हाइल। पहले एक बार ऊपर के सब टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। Then let's move on to the next subtopic, that is representation of a cell. तो इसमें आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी इन representation of cell, ध्यान से सुनना। What you must be able to do is, ठीक है, given a representation you should be able to write the reactions, ठीक है। In fact, given representation I should say you should be able to identify two things. You should be able to identify the type of electrode it is and the reactions that are going to happen at anode and cathode. This is the expectation, and इसके ऊपर इनफैक्ट FBS में आई थिंक सवाल भी हैं, आप लोगों ने शायद वो डाउट्स भी डाले होंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। बट या दैट इज द expectation after seeing the representation of a cell, and ये अगेन बहुत क्रूशियल टॉपिक है। अगर ये रीड करना नहीं आएगा तो फिर आपको आगे के क्वेश्चंस ऐसे एलियन से लगेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी नोटेशन है। तो प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दीज एंड रिमेंबर देम, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स में? सर आई हैव अ डाउट, इसमें ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ, वो कई बार रहेगा। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट जनरली जब ये रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जैसा रिएक्शन हो रहा होता है वैसा रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है, ठीक है, हाउ द रिएक्शन इज गोइंग। बट समटाइम्स द कंस्ट्रेंट इज दैट सेम फेज की चीजों को आपको साथ में रखना होता है, सेम फेज फिजिकल स्टेट आपको साथ में रखना होता है, तो उस चक्कर में ऑर्डर थोड़ा सा जम्बल अप हो जाता है, ठीक है। वो आई थिंक आपने कई बार एक देखा होगा कुछ जगह पर, राइट? यही डाउट था? हाँ, मतलब ऑर्डर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बिकॉज यू सेड फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स in the anode you always write it on the left hand side, हाँ हाँ, and for cathode on the right hand side, but in metal insoluble में मतलब कहीं पे लेफ्ट में लिखा था, कहीं पे राइट में लिखा था एनोड में ही, तो काफी कंफ्यूजन था उसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ऑलराइट। और कोई डाउट है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के अंदर? Okay, then let's come to this next topic of electrode potential and cell potential. Now this was something which let me kind of take some time to also work through this.
सो पहले मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर लेता हूँ. Now the thing is, when we talk about electrode potential, so understand with this simple example that when we have a metal dipped in its ions ka solution, a metal electrode dipped in its ions ka solution, then what happens is that there is an equilibrium that gets established between the metal and its ions. ठीक है. And because of this, ठीक है, स्टैंड अलोन स्टेट में बता रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है. So as a result of this, sometimes you can have the following things happening in this manner, that tendency to undergo oxidation ज्यादा हो. ठीक है. If tendency to undergo oxidation है तो as a result क्या रहेगा, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. और इट कुड बी द अदर वे अराउंड. टेंडेंसी टू अंडरगो अगर रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, लाइक मेटल आयन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज समथिंग which is what is called as electrical double layer. ठीक है. Now the concept is that when you have two opposite layers of charge at some distance from each other, they have or they generate a potential difference. They generate a electric potential difference between them, and that is what we call as the electrode potential. ठीक है. अब यहां पर ध्यान से समझना, one important aspect is that अब इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. हम इसको एब्सोल्यूट वे में मेजर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि मैं काइंड ऑफ यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दूं, उसका एक एंड इस तरफ कनेक्ट करूं और एक एंड इस तरफ कनेक्ट करूं और ये मुझे वोल्टेज का रीडिंग दे देगा. वैसा नहीं होगा. मतलब दिस विल नॉट बी अ डिजाइन जिसके थ्रू करंट पास हो जाए. सो दिस काइंड ऑफ is not something which you can determine in an absolute manner. So what I would write here is that can't determine absolute value. However, what we can or were able to determine, so we can't determine absolute value for half cell. ठीक है. हाफ सेल और electrode. But what we can do is we can determine E, or you can say potential difference. Potential difference को हम लोग E से represent कर रहे हैं for a cell. ठीक है. फुल सेल के लिए हम लोग ये वर्क कर सकते हैं, क्योंकि फुल सेल में कैसा है, फुल सेल में we are able to actually take the electrons via an external circuit. ठीक है. मैं इस external circuit के थ्रू, मान लो यहाँ पर ये एनोड था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर कैथोड था, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर डिवाइस लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. ठीक है. सो ई सेल was equal to E oxidation of anode plus E reduction potential of cathode. ठीक है. इसको इलेक्ट्रॉन देना है और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है. So we are
able to determine this thing experimentally. तो अब हमने क्या डिसाइड करा, that we choose किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का अगर हमें डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज कर लेंगे, ठीक है. दैट इज वेयर दिस टॉपिक ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कम्स इन, ठीक है. दैट बिकॉज आई कांट मेजर फॉर इंडिविजुअल हाफ सेल्स, तो मैं क्या करूंगा कि अननोन, ठीक है, जो भी मेरा अननोन इलेक्ट्रोड है, अननोन हाफ सेल है, इसको मैं एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में क्लब करके एक सेल बना दूंगा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग द सेल आई वुड नॉट नो कि कौन सा एनोड रहेगा कौन सा कैथोड रहेगा, ये मुझे बिफोर स्टार्टिंग द सेल नहीं पता पड़ेगा. सो ओनली आफ्टर cell starts to work, ठीक है, I might be able to guess. There are two possibilities. SHE can be anode and unknown can be cathode, or it can be that SHE is cathode and unknown is anode, ठीक है, ऐसा होगा. अब द थिंग इज कि बाय कन्वेंशन हम लोगों ने क्या डिजाइन करा हुआ है कि ये SHE के पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम जीरो असाइन कर देंगे, बी इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस और रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, डजंट मैटर, ठीक है. इसको हम लोग जीरो असाइन कर देंगे, तो जो भी ई सेल आएगा उसकी वैल्यू से फिर हम लोग ये अननोन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये समझ में आया सर? अब इससे एक और चीज नोटिस करना, एक मिनट रुक जाओ, इससे एक और चीज नोटिस करना कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज कैसे आती हैं. तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको ई सेल कैसे लिखना है. इनफैक्ट अगर सब स्टैंडर्ड स्टेट में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये नॉट का सिंबल लगा देता हूँ सबके ऊपर कि मेजरमेंट अभी स्टैंडर्ड स्टेट में करा जा रहा है. तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकता हूँ, क्योंकि जनरली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का ही डेटा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मिलेगा, ठीक है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है. सो व्हाट दिस बिकम्स इज SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. दिस इज व्हाट ई नॉट सेल बिकम्स. सो अब आप नोटिस करना, ठीक है, इन दोनों केस में वापस से मैं हाईलाइट करता हूं कि अगर ये वाला केस है, पहला वाला केस जहां पर अननोन कैथोड है, ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस जीरो, ठीक है. तो क्वेश्चन मार्क मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी. और अगर ये वाला केस है जहां पर अननोन इलेक्ट्रोड एनोड है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, कैथोड का SRP जीरो है एंड माइनस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी. ये समझ में आया? इज दिस समथिंग क्लियर विद एवरीवन? अब कुछ डाउट है तो बताओ. सर हाँ बोलो. सर सर अगर हम दोनों जगह कैथोड और एनोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करें, अगर हम वोल्टामीटर लगा के वोल्टेज चेक करें, तो क्या सर वो फिर भी नहीं आएगा ना, जीरो आ जाएगा. दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
तो किसी के इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की रिलेटिव टेंडेंसी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, और किसी को कोई डाउट है इसमें? In this part which I had taken electrode potential and cell potential and reference electrode वाला part। अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, एक तो SHE है और एक कैलोमल इलेक्ट्रोड है। कैलोमल इलेक्ट्रोड मैं बता देता हूँ क्या रहेगा, बट अदरवाइज उसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है। Calomel electrode is also a standard reference electrode, and why is it so is because of the fact that calomel electrode is easier. ठीक है, so this is more convenient to use। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो क्या है, उसके लिए आपको हाइड्रोजन गैस का सेटअप चाहिए पूरा, एंड हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होता है, तो इट काइंड ऑफ is not something which is easy to use and work with। ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसका। सो उसके वजह से दिस अनदर रेफरेंस इज आल्सो यूज्ड, मेकिंग इट अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन टू कैलिब्रेट एंड काइंड ऑफ टेक बेंचमार्क्स व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो अब ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, दिस इज, नोटिस करना, मेटल insoluble salt electrode। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स दैट यू ऑलरेडी नो। अब इसमें जो मेटल रहता है वो Hg रहेगा एंड मेटल का insoluble salt रहेगा Hg2Cl2। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट Hg अंडर रूम टेम्परेचर कंडीशंस लिक्विड रहता है। ठीक है, सो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैड जस्ट स्पोकन अबाउट। तो यहाँ पे नोटिस करना इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इसके कंस्ट्रक्शन में काइंड ऑफ सेटअप कुछ इस तरीके से रहता है दैट आपने यहाँ पर Hg ऐसे फिल कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज मर्करी एज अ लिक्विड फिल्ड। ठीक है, यहाँ पर एक प्लैटिनम का वायर रहेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन यू हैव a paste of Hg and Hg2Cl2, and you have present a solution of anion of the salt। ठीक है, तो KCl मान लो आप, KCl का सोल्यूशन रहेगा, ये जो अनायन रहेगा उसी का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब can anyone give me the reaction how to write the anode और cathode reaction of it? कोई एक बता दो तो दूसरा उसका उल्टा ही हो जाएगा। कौन बताएगा? Two Hg plus 2Cl minus gives Hg2Cl2 plus 2 electrons. 2Hg plus 2Cl minus aqueous is giving, क्या दे रहा है? Hg2Cl. Hg2Cl2 plus 2 electrons, right, एकदम सही। So 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। अब कैथोड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर ये फिगर आउट हो गया तो कैथोड इसका ऑपोजिट है। Hg2Cl2 plus 2 electrons is giving 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous।
ठीक है. All right, so this kind of fills in the reference electrode वाला part as well. अच्छा, अब next इसमें कोई डाउट बचा है या फिर अगले पे मूव करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर. All right, so let's move on to the next part, which is the electrochemical series. Now, let me try to answer the first question, which might be there in almost everyone's head, कि हमें क्या electrochemical series याद करनी है क्या? ठीक है. So, it's a tricky question because I would not ask you to completely remember it, but yeah, the relative order is something which you must remember. अरे ये क्या हो गया? So when you talk about the electrochemical series, remember the, okay, let me first write down what not to remember. Do not remember the data. Okay, this is not something which will be of much use to you, except okay, except there will be couple of data points which I would be asking you to remember later on. आप लोग देखोगे, ठीक है, SRP and SOP of water. ठीक है. Let me kind of ऐसे talk about SRP of water and SOP of let me actually ठीक है. SRP of इस तरीके से लिखना बेटर रहेगा. ठीक है, ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बात आगे जाके जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, गैल्वेनिक सेल्स खत्म होगा, आई थिंक 5th या 6th लेक्चर में आपके लिए काम आएगा, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला डेटा. अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिमेंबर डेटा. ठीक है, बट व्हाट यू डू नीड टू रिमेंबर, डू रिमेंबर the relative order of elements. Okay, do remember the relative positions of elements. ठीक है. अब कैसा कैसा मतलब जैसे मुझे क्या क्या याद है, मैं उसके ऊपर आपको एक बार बता देता हूँ. मोटा मोटा इतना याद रखोगे आप तो आपका भी काम चल जाएगा. एक तो ये हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस रहता है. ठीक है, 0 वोल्ट रहता है. अब इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज वाले SRP रहते हैं एंड नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज वाले SRP रहते हैं. ठीक है, अब जो पॉजिटिव SRP वाले एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में क्या स्पेशल एस्पेक्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दीज, दैट दीज behave as cathode when connected to SHE.
ठीक है, सो दे बेसिकली वांट टू अंडरगो रिडक्शन, so they behave as cathode or you can say undergo reduction when connected to SHE. and इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, these behave as anode, ठीक है, they want to undergo oxidation when connected to SHE. ये समझ में आया? अब इसमें एक दो जो सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले हैं वो केसेस याद रख लो. Li plus aqueous plus electron giving Li solid, ठीक है, इसका ऐसे -3.05 वोल्ट्स. वैल्यू मत याद रखो, वो तो मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी ऐसा कंफर्म नहीं, शायद ये मोस्टली यही वैल्यू होगा. तो अब इसको रीड करो अच्छे से. What was that you should read about this? That ये Li plus क्या है, मतलब यहाँ पे टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, यानी कि रिएक्शन प्राइमरीली बैकवर्ड जाएगा. मतलब दिस काइंड ऑफ readily oxidizes, readily undergoes oxidation. and होता भी है ना, metal they want to readily undergo oxidation. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा strong reducing agent, ठीक है. whereas Li plus के बारे में बात करूं अगर मैं, राइट, तो Li plus strong oxidizing agent होगा या फिर weak oxidizing agent होगा, कोई बताएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. तो यही गड़बड़ है यहाँ पर, ये नहीं करना है. हाँ, दिस विल बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बताया ना, ये रिएक्शन अब इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये डायरेक्शन ऑक्सीडेशन जाने की टेंडेंसी है, ठीक है, रिडक्शन जाने की टेंडेंसी नहीं है. अच्छा, एक और एग्जांपल लेके आपके अंडरस्टैंडिंग को और कंक्रीट करते हैं. यहाँ पर मान लो ये ऊपर वाला लेते हैं, पॉजिटिव SRP वाला. तो ये कैसा रहता है, यहाँ पर F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस एक्वस. तो इसका कैसा है, यहाँ पर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन है, ठीक है, यहाँ नीचे से टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन है, मतलब ये रिएक्शन इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है. यानी कि इसके लिए क्या है, व्हाट इज इट, दैट दिस रेडिली अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है. नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ना, तो ये रेडिली इट अंडरगोज रिडक्शन. सो ये क्या हो गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड F माइनस के बारे में मेरा कमेंट रहेगा सिमिलरली, दिस इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं लेने का है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाने का है. तो ये समझ में आया, ये दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर है. थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? इसमें कोई डाउट है? ठीक है. देन अब जैसे जो मैं पॉइंट बता रहा था कि इसमें कौन से रिलेटिव पोजीशंस आपको याद रखने हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अब मतलब एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दो कि एटलीस्ट इनके बारे में आपको आइडिया रखना चाहिए. सो इफ आई टेक दीज एग्जांपल्स फ्रॉम द बुकलेट, एनसीईआरटी का वो टेबल देखूं मैं, एनसीईआरटी का टेबल कहाँ पर है, wait, give me 1 minute, let me find it out. NCERT electrochemistry. आपको NCERT दिख रहा है क्या?
जो मैंने शेयर किया है। ये दिख रहा है क्या गाइस एनसीईआरटी? नहीं sir. दिख रहा। सर नहीं। Okay, then give me 1 minute. I will copy paste it in the एक मिनट देना मुझे। I'll just quickly copy paste it. छोटा सा हो गया। ठीक है, आई थिंक अभी पढ़ने में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, सो अब इसमें ऐसा रहेगा, इसमें आप लोग क्या क्या याद रख सकते हो। एक तो ये F2 को ध्यान रखना, ठीक है, लेट मी नॉट कवर इट। ये F2 ये ध्यान रखना, गोल्ड का ध्यान रखना, क्लोरीन, ये वाटर वाला इम्पोर्टेंट रहेगा, ब्रोमीन, मर्करी, Ag, देन आयोडीन, ये कॉपर, देन H+, Pb, Sn, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, वाटर वाला भी रहेगा ये, मैग्नीशियम, ठीक है। ये रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है, एटलीस्ट इनका ये एक रिलेटिव ऑर्डर बना लेना। ठीक है, ये इतने जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं ना, इनका वैल्यूज वगैरह नहीं याद करना है, बट कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे उसका एक आइडिया बना लो। ठीक है, और चाहिए तो कोई इसका ऐसे गाना वाना भी बना लो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर। पहले कुछ तो होता था एक, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो ऐसे एल्यूमिनियम का ऑल्टो, जिंक का जेन, Fe का फरारी, ऑल्टो जेन फरारी, क्या था यार वो, किसी को याद है क्या? कुछ तो ऐसे लीना, मतलब ली ना मांगे ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, ऐसा कुछ होता था। अब फिर उसके आगे का कुछ बनाओ ना यार अपने हिसाब से, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इतना तो चलो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पार्ट क्लियर है। इसमें कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? ऑल राइट, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल वाला पार्ट भी आसान था। इसमें आपको सिंपली रिलेशनशिप याद रखना है डेल्टा G नॉट और E नॉट के बीच में, एंड इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, इनफैक्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें एक तो ये रिलेशनशिप था डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट, एंड इसमें जो आपको याद रखना था वाइल डूइंग द क्वेश्चंस वो डिस्कस करा गया था कि डेल्टा G नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा E नॉट
इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा। तो डेल्टा जी नॉट एडिटिव है, ई नॉट इज नॉट समथिंग विच इज एडिटिव। फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस थे। सो आई गेस ये कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़े फटाफट फटाफट। एफबी और एफबीएस के डाउट्स देख लें। किसको कुछ पूछना है इसमें? एक्सपेक्टेशन क्लियर है आप लोगों को, क्या पता होना चाहिए? ऑल राइट, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द डाउट्स। एफबीओ में आपने डाले हुए हैं सबसे पहले, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन में डाला हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन, वेट गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे लैपटॉप का चार्जर ढूंढना पड़ेगा, बैटरी इज लो। गिव मी 1 मिनट। हाँ, सो एफबीओ में क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में the wire must be connected directly to the salt bridge in order to the wire must be connected to the salt bridge in order to maintain electrical neutrality in the half cell। कौन सा वायर? यहाँ कोई वायर की जरूरत नहीं होती है सॉल्ट ब्रिज में। Salt bridge has ions which move from one place to another place. They do not have a wire. ठीक है, so I hope you are clear on that particular point. Then आपने next doubt पूछा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6। सो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल में क्या होगा? अब यहाँ पर आपको बोला ना कि ये वाला कॉपर एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड सिल्वर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ये आपका इलेक्ट्रॉन का सोर्स रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन का सिंक रहेगा। तो एक्सटर्नल पार्ट में electrons will go from anode to cathode, so from the copper chamber to Ag chamber। ठीक है, then someone has asked 7th question as well। 7th question में ये नोटिस करना ना, H3O plus and H plus are same। ठीक है, so this implies जो आपका बी ऑप्शन है वही आपका आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन में तो प्लैटिनम पता नहीं कहाँ से आ गया, सी ऑप्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड पता नहीं कहाँ से आ गया, तो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस। देन डी ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस
that is also not the hydrogen electrode. Hydrogen electrode is SHE is H2 gas and H plus ions. ठीक है, H plus की जगह ज्यादा आप थोड़ा सा ये बोल सकते हो, you know H plus exists as H3O plus, वो चलेगा, उतना tweak I can understand. H plus और H3O plus ions. ठीक है. Then someone asked ninth question as well. Ninth question में क्या है, ये अभी मैंने बता दिया आपको Calomel electrode के बारे में. So this is something which you can take it up from there. Then इसके बाद में आपने 23rd पूछा है. So 23rd में so अब ये हो जाएगा ना, आपको ये स्टेटमेंट 23rd का पता ही है. मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन. ठीक है. अब द थिंग इज कि जो मोर एक्टिव होता है उसका SRP कम होता है, और जो लेस एक्टिव होता है उसका SRP हायर होता है. ठीक है. एंड दिस इज ऑलवेज विद साइन. आई विल बी डूइंग द डिस्कशंस. ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा विद साइन ही डिस्कशन करेंगे अपन. ठीक है. सो देयर यू गो. यहाँ पर A मोर एक्टिव हो गया एंड B लेस एक्टिव हो गया, क्योंकि A का वैल्यू -0.76 है. ठीक है, मतलब ये -0.76 और ये +0.34, तो ये बड़ा रहेगा. मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग साइन के साथ में जाते हैं. ठीक है. आई थिंक अगर किसी को वो डाउट होगा तो कि सर मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ये है, वैसा है, वैसा नहीं, ऑलवेज विद साइन. ये आपके लिए क्रूशियल है. देन 25th ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया लिथियम वाला एग्जांपल लेकर ही. A+ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग A- हाई नेगेटिव SRP. इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट दिस इज समथिंग विच द रिएक्शन, इसका हाई नेगेटिव SRP का मतलब दिस इलेक्ट्रोड. ठीक है, दिस हाफ सेल और you should say electrode wants to act as anode. ठीक है, एनोड मतलब undergo oxidation. ठीक है, when connected to SHE. ठीक है, तो ये अगर एनोड की तरह जाना चाहता है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यानी कि ये A- रेडिली ऑक्सीडाइजेस. ठीक है, और यू कैन से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अभी बात करी थोड़ी देर पहले. ए के लिए क्या हो जाएगा, ए इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. देन 26th क्वेश्चन भी डाला था आप लोगों ने. सो ओके, 26th में सी ऑप्शन तो करेक्ट है ही सही, बी ऑप्शन गलत क्यों है, because it is not Cu that gets reduced, Cu2 plus gets reduced. ठीक है, that is the trick. Sometimes students fall for that. ठीक है. then 30th question में सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने.
मतलब ओके, Fe solid 2 Fe solid plus O2 gas plus 2 H2O liquid is giving 2 Fe2 plus aqueous plus 4 OH minus aqueous। ठीक है, तो इसमें अब आप नोटिस करो ध्यान से, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ना। This is oxidation, so this implies this will be your anode, and this is undergoing reduction, so this implies this will be your cathode। अब आपको बस यहाँ पर लिख देना है E naught cell will be equal to SRP cathode minus SRP एनोड। डेटा दिया हुआ है आपको, कैथोड मतलब क्या था, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाले का SRP दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, प्लस 0.4, और एनोड वाले का भी SRP दिया हुआ है माइनस 0.44। सो ये आपका आंसर आ गया 0.84 वोल्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट फटाफट पिक करो, ऑब्जर्व कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, then you will be in a much better position to carry these forward। Then 33rd question, 33rd question तो आसान है, सीधे सीधे आपको अच्छा वापस से यही देखना, सेम प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक एनोड कैथोड में आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। 2H plus is giving SN2 plus aqueous plus H2 गैस, तो इसमें कैसा रहेगा, ये 0 है, ये +2 है, ये +1 है, ये 0 है, राइट। सो Sn से Sn2 प्लस जा रहा है, ठीक है, Sn से Sn2 प्लस जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये आपका एनोड हो गया, एंड H प्लस से +1 से 0 जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन, तो ये आपका कैथोड हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ पे E नॉट सेल लिखोगे तो क्या आएगा, E नॉट सेल विल बी, वापस से सेम फॉर्मूला, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, राइट। SRP कैथोड इज हाउ मच, 0, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एनोड का माइनस 0.14 दिया हुआ है, तो ये 0.14 रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू E नॉट सेल इज इक्वल टू RT बाय NF ln K, or you can say 0.059 by N log K at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहाँ पर N का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये समझ में आया। देन आप लोगों ने आगे जाके 14th क्वेश्चन भी डाला है, सो लेट मी ट्रेस बैक टू 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में, हाँ 14th क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ ये है, अबव और बिलो वाला, ठीक है। सी मतलब इसका एक्चुअल आंसर जो रहेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, वो सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अबव एंड बिलो इज एज पर NCERT, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कुछ कुछ ऊपर नीचे उल्टा उल्टा दिया हुआ है, आप NCERT फॉलो करोगे तो उसमें ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो लेस एक्टिव है और नीचे वाले मेटल्स आर मोर एक्टिव, तो नीचे वाले मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। यही कन्वेंशन फॉलो करना है। सॉरी, हमेशा ऊपर वाले मोर एक्टिव एंड लेस, नीचे वाले लेस एक्टिव। मतलब ओके, लेट मी काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट अगेन विद 15th क्वेश्चन, ठीक है। 15th क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट पूछा नहीं है, बट देखना यहाँ पर, It's measured with respect to what?
नहीं, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई वापस से। 15 question chemical activity with respect to what? हाँ हाँ राइट, मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एक गड़बड़ है, बिकॉज केमिकल एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज समथिंग विच हैज टू पार्ट्स टू इट, ठीक है, एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, टिपिकली ये मेटल्स के बारे में बात होता है, और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये टिपिकली नॉन मेटल्स के बारे में बात होता है, ठीक है। They would want to give electrons and non-metals would want to take electrons. So इसमें कैसा रहेगा, lower SRP more active metal रहेगा, you can say, and यहाँ पर higher SRP, ठीक है, more active non-metal रहेगा. So the question is kind of incomplete because यहाँ पर it should have clearly mentioned कि उनको कौन से एक्टिविटी के बारे में बात करनी है. तो इसका आंसर ए या बी दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी केमिकल एक्टिविटी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा है किसी ने. सो 20 में यही हो गया ना, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर पाएगा. सो मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव, ठीक है. लेस एक्टिव यहाँ पे H प्लस है जिसका SRP 0 है. अब यहाँ पर जो मेटल्स हैं तो उसमें आप नोटिस करोगे क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, Hg, Al, Pb एंड बेरियम. तो इनके लिए तो कैसा है, दे हैव नेगेटिव SRP एंड Hg का तो पॉजिटिव SRP है, तो ये सब डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है, दे कैन डिस्प्लेस, बट Hg कांट. तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है. देन 27th क्वेश्चन, 27th question will be the standard electrode potentials of the reactions. तो ये दिया हुआ है ना आपके सामने, इसमें मैं क्या करूं, SRP कैथोड और SRP एनोड भी दिया हुआ है, ठीक है. इस केस में कैथोड पर क्या है, Ag प्लस और Ag है, सो E नॉट Ag प्लस Ag, एंड एनोड पर Sn है. तो बस ये आंसर हो गया, 0.8 माइनस 0.14, तो ये 0.94 वोल्ट्स आ गया, ठीक है. देन 29th क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने. सो 29th कैसा रहेगा, 29th वापस से वही चीज हो गई ना, बिटवीन टू हाफ सेल्स. हम लोगों ने अभी यही यहाँ पे बताया ना, लेसर SRP will act as anode and higher SRP will act as cathode, ठीक है. सो ये चीजें जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनमें भी आपको यही मेथोडोलॉजी लगानी है. जैसे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल के टाइम पे, like pick a batchmate of yours, a friend of yours and do the discussions, explain it to each other. उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसमें भी अनलेस यू डू दिस एक्सरसाइज, एक बैचमेट को साथ में लेकर एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक, तब तक क्या होगा कि आप लोग अपने खुद के दिमाग में चीज़ों को फिट नहीं बैठा पाओगे, एंड सूनर और लेटर वापस से ये चीज़ें गायब होने लग जाएंगी, ठीक है. सो इसको आपको एकदम, मतलब जिस लेवल पर आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला याद करे थे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, ये रात को 4 बजे भी नींद से उठा दो
और बड़बड़ करने को बोलो तो फॉर्मूला सही से बता दोगे, तो उसी तरीके से ये भी आपके दिमाग में उसी सबकॉन्शियस लेवल पर फिट हो जाने चाहिए कि क्या एनोड होता है, क्या कैथोड होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होता है, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी एबल टू एब्सोल्युटली आंसर क्लियरली विदाउट एनी मिस्टेक्स, वन टाइम फर्स्ट गो में करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए भी प्लीज डिस्कशंस करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, पकड़ लो किसी को, डिस्कस करो उनके साथ में एंड इंश्योर कि आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। देन 12th क्वेश्चन पूछा था, तो 12th क्वेश्चन में भी कैसा रहेगा। 12th क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, वापस रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, मोर एक्टिव डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो अपन ने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, कहाँ गई, इसमें आप नोटिस करो ना, आपको कॉपर के बारे में बोला जा रहा है, तो आप कॉपर आइडेंटिफाई कर लो कि कॉपर कहाँ पर है, तो ये रहा कॉपर, ठीक है। अब कॉपर किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, पीबी को, पीबी को तो नहीं कर पाएगा, पीबी ज्यादा एक्टिव है। एजी को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि एजी उसके ऊपर है कॉपर के, तो एजी लेस एक्टिव है, ठीक है। एंड जिंक एंड कैडमियम, ठीक है, जिंक भी उसके नीचे है, इसको भी नहीं कर पाएगा। अब कैडमियम का दिया नहीं है, बट कैडमियम यहीं कहीं पर होगा, ठीक है, ये इसमें है नहीं, तो यहीं कहीं पे ये होगा जिसको कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में भी ये वापस से आप रेफर करो सीरीज को, ठीक है। वापस से मैं सीरीज पे आ जाता हूँ, ये सीरीज में आप नोटिस करो अब वापस से, राइट। सो लुक एट द एलिमेंट्स, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो एक तो ये रहा आयोडीन, ठीक है, ये ब्रोमीन रहा, ये क्लोरीन रहा एंड ये फ्लोरीन रहा, ठीक है। तो इनमें अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा F2 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर मैं इनमें पूछूंगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें फिर I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर रहेगा ना, F माइनस तो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन, मतलब जिसको भी डाउट था। ठीक है, नाउ 11th के बाद में 7th तो आई थिंक हम लोगों ने कर लिया ना, 7th, हाँ ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। फिर 31, 32 में क्या है, वापस से बस वही करना है आपको। 31, 32 में भी you have to identify which is anode and which is cathode and just go with it। अच्छा, इसमें अब नोटिस करना, इसमें कैच क्या है, गिवन SOPs है, ठीक है। हमने फॉर्मूला तो याद कर लिया SRP के लिए, बट क्वेश्चन में SOP का डेटा दे दिया है, ठीक है। सो दैट इज द ट्रिक दैट यू विल हैव टू वर्क विद, ठीक है। इसमें E0 सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड,
या फिर आप बना दो इस चीज को माइनस ऑफ SOP कैथोड प्लस SOP एनोड एंड देन सॉल्व फॉर इट। देन 32nd क्वेश्चन में जस्ट देखते जाओ, आपको ई नॉट सेल मैक्सिमम चाहिए ना, ई नॉट सेल SRP कैथोड माइनस SRP एनोड है। अब आपको इसकी अगर मैक्स वैल्यू चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और हाई होना चाहिए एंड ये नेगेटिव वैल्यू रहना चाहिए एंड हाई नेगेटिव वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एज इन मैग्नीट्यूड वाइज ही मैं कहना चाह रहा हूँ। So rather than high, I should use the word more positive and more negative. I should use, this should be more positive and this should be more and more negative. एक बार ठीक है, so you take the combination which works for you. Okay, is this clear? ठीक है, now let's solve doubts from the FBS section. So FBS सेक्शन में से क्या क्या पूछा है आप लोगों ने, थोड़े से डाउट है 1 का CD एंड 3 का B। सो क्वेश्चन नंबर 1 का इफ यू विल नोटिस C, तो ये कैलोमर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड is your calomel electrode. So this is a metal insoluble salt electrode. अभी बताया आपको इसके बारे में कैसे लिखना है इसका रिएक्शन। So it will be Hg liquid plus 2Cl minus is giving Hg2Cl2 solid plus 2 electron। एंड कैथोड क्या रहेगा, कैथोड इसमें दिस इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज समथिंग विच इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। सो इस केस में अभी कैथोड का रिएक्शन आपको लिखना है विच इज H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस, नहीं उल्टा, माय बैड, 2H प्लस aqueous plus 2 electron is giving H2 gas, right? So it's pretty straightforward है। D ऑप्शन में ये आपका मेटल insoluble salt इलेक्ट्रोड हो जाएगा, Pt QH2 QH प्लस। ठीक है, ये सब नहीं सॉरी, ये वाला आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो जाएगा क्योंकि इसमें सब ये एक ही फेज में है, ये सब के सब एक्वस है और इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। एंड राइट हैंड साइड पर जो कैथोड है आपका वो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दिस वन इज मेटल insoluble salt electrode. So based on it now you can read how to work on this। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, QH2, ठीक है, QH2 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है ना, ऑक्सीडेशन होना है, so it will be Q plus, okay my bad, it will be
QH2 aqueous will be giving you Q aqueous plus 2H plus aqueous plus 2 electron, right? This Q will be going from -2 to 0, and यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, राइट? देन थर्ड का क्वेश्चन, हम थर्ड का बी ऑप्शन आपने पूछा है, इसमें अब क्या हो जाएगा? सेम चीज है, SRP मतलब O2 oxidizes gold cyanide AuCN2 माइनस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? O2 खुद कैथोड की तरह बिहेव करेगा, खुद रिडक्शन करेगा, एंड गोल्ड का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। बस अब आपको पता पड़ गया कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, यू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है? डेटा आपके सामने है ही सही, राइट? सो आई थिंक these are kind of the doubts that you have asked. I'll share these doubts with you, and as part of your next assignment, क्या करना है उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ में वैसे तो उस गूगल शीट में शेयर कर दिया है, बट मैं ग्रुप पे वापस से शेयर कर दूंगा, and this is something which is for the class day after tomorrow, I think. So this is something next class. हाँ फ्राइडे को है, तो उसके लिए you have to do this वीडियो लेक्चर 3 देखो, ठीक है? वीडियो लेक्चर 3 देखने के बाद में then you do questions from FBO and FBS, ठीक है? FBO में मैंने क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं 34 से 50 एंड FBS के, ठीक है? मैं ये ग्रुप पे भेज दूंगा आप लोगों को, I'll send it on the group. What is the next task that you have to do before the Friday's lecture? ठीक है? वीडियो लेक्चर 3 plus the selected questions from FBO and FBS. All right, till then let's close the session for the day. All right guys, Thank you, sir. yeah, थैंक यू सर। बाय गाइस। ये दीप का कुछ क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हो दीप? Thank you, sir. FBO में कि FBS में? अरे वो मिस हो गया यार, उसमें डबल स्लैश होना चाहिए था, वो टाइपिंग एरर है वो, अदरवाइज इट शुड बी देयर, ठीक है? ऑल राइट गाइस, चलो थैंक यू।